Hi everyone, welcome to Rodha. In today's video, I have brought yet another set for you guys. It's a moderate level set, अच्छा set है. It's a new variety kind of a set where you'll actually enjoy solving this particular set. थोड़ा सा interesting type का है, right? And it's a good set, ठीक है. But before we get into this set, I would like to again announce the launch of our R6 batch. It is launching on 28th of April. That is, the classes are beginning from 28th of April. इट्स अ हिंग्लिश बैच एंड इट्स अ इवनिंग बैच. ठीक है, तो ये बैच आई एम सॉरी, आई एम हैविंग अ बैड थ्रोट, आई हैव नॉट बीन कीपिंग वेल. ऑलराइट, सो इट्स अ हिंग्लिश बैच एंड इट्स अ इवनिंग बैच, राइट? सो द टाइमिंग फॉर दिस बैच इज फॉर QA. द क्लासेस आर गोइंग टू बी 5 to 7 and for LRDI and VRC the classes timing are gonna be 8 to 10 p.m. That is alternate days, right? So it's a evening batch, everybody, right? And in this particular batch, Quant is taken by Ravi sir, VRC is taken by Nikita ma'am, and LRDI will be taken by me, right? So we are gonna start from the very scratch in this particular batch. एकदम basic से एकदम advanced level तक पढ़ेंगे. Lot of practice tests, lot of questions in the booster that we'll be doing. So it's gonna be a comprehensive batch. ऐसा नहीं कि ये सिर्फ CAT पे focus करने वाला है. We are gonna cover everything for in this particular batch. और आप सब अच्छे से सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर पाओगे if you are a part of this batch, right? So if you feel that CAT 2025 is your calling और अब आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, because still we have time in hand, right? अभी it's the right time to start your preparation, because May is a very good time, right? अगर आप यही आप जुलाई अगस्त में जाओगे तो आप थोड़ा सा लेट हो सकते हो, प्रोवाइडेड इफ योर बेसिक्स आर नॉट इन प्लेस, राइट? तो अगर आपको बेसिक अच्छे से कवर करके एक अपनी प्रिपरेशन को सॉलिड प्लेस में लाना है, वेर यू कैन स्कोर अ परसेंटाइल, जहाँ से आप एक अच्छे बी स्कूल जाना चाहते हो, सो दिस इज द राइट टाइम गाइज टू स्टार्ट योर प्रेप. सो प्लीज एनरोल इन आवर आरएसएस बैच विच इज स्टार्टिंग ऑन 28th of April. ऑलराइट, चलो वील मूव टू दी सेट नाउ. So this is the set in front of you. I would want you guys to take a screenshot of this. These are the questions here. आप इसको solve करो, pause the video, and unlike last video guys, please एक it just takes 1 minute to let me know in the comment section कि आपके कितने correct हुए, ठीक है? So I would really love to know कि 6 questions में से आपके कितने correct हुए, कितने incorrect आए, and how did you find the set. बस एक छोटा सा I would really love to hear from you guys in the comment section. एक थोड़ा सा ना valuable feedback मिलता है मुझे कि what level of sets do you guys expect, उससे ना थोड़ा idea लगता है मुझे भी, right? If everybody is getting let's say 3 on 6 or 2 on 6 in that kind of a fashion, तो मैं थोड़ा सा level of sets और degrade करूँगा, फिर वापस से upgrade करना start करूँगा. And if everybody is getting 6 on 6 at this particular level, तो मैं already I'll start moving forward, ठीक है? तो एक मुझे idea लगता है guys. So that is why I'm saying that please make sure that you guys let me know in the comment section about your accuracy in this particular set, ठीक है? चलो, let's start with the discussion here. So it says in a solo dance contest, the top finalists, 4 finalists, Aarav, Bhaveen, Chitra and Disha, are judged on 4 different parameters, that is expression, rhythm, stage presence and technical skills by a panel of 3 judges, that is Meera, Nikhil and Omkar, ठीक है? तो 3 जजेस है और 4 पार्टिसिपेंट है. इनको हर पार्टिसिपेंट हर फाइनलिस्ट को 4 पैरामीटर पे जज करने वाला है, दैट इज एक्सप्रेशन, रिदम, स्टेज प्रेजेंस एंड टेक्निकल स्किल्स, ठीक है? नाउ लेट्स सी, द जजेस यूज सम सॉर्ट ऑफ अ कोडिंग to rate the performance of the 4 finalists on 4 parameters, ठीक है? And following is the additional information about it, ठीक है? तो यहाँ पे जो judges है ना, वो कुछ कोडिंग यूज़ करते हैं इन पैरामीटर्स में इनको रेट करने के लिए, ठीक है? और मेरे पास कुछ अनफिल्ड टेबल है, इसको मुझे आई थिंक कंप्लीट करना होगा, राइट? तो इस पर आते हैं कि एक बार कंडीशन को भी देखते हैं, ठीक है? लेट मी रीड द क्वेश्चंस हियर. तो क्वेश्चंस तो मुझे सारे डायरेक्टली दिख रहे हैं, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज false, right? Which of the following statement is correct about the ratings given to Disha, and so on and so forth. So all the questions are direct, मतलब cases तो नहीं बनने वाले हैं, ठीक है? So that's a good thing about this particular set here. अब पढ़ते हैं एक एक करके. तो कह रहा है कि Meera uses the 4 letters A, B, C and D to rate the performance of each of the 4 finalists. In each parameter, he gave a different letter. अच्छा, Meera, he gave a different letter to rate the performance of each finalist, and for each finalist, he gave a different letter to rate the performance in each parameter. ठीक है? तो अब वॉट इट इज़ ट्राइंग टू टेल मी कि मीरा ने जैसे रेटिंग्स दी ABCD, ठीक है? तो अगर मैं पैरामीटर E की बात करूँ तो चारों फाइनलिस्ट को डिफरेंट रेटिंग्स मिलेंगी, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आरफ को A मिला तो चित्रा को भी A रेटिंग मिल जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट?
अनदर थिंग इज कि हर पार्टिसिपेंट को, ठीक है, हर यहाँ पे फाइनलिस्ट को 4 डिफरेंट रेटिंग्स मिलने वाली है, राइट। अगर मीरा ABCD देता है रीडिंग, ठीक है, तो आई कैन से मीरा वुड गिव, इफ मीरा इज गिविंग A to Arav in E, तो देन मीरा कैन नॉट गिव A to Arav in any of the other parameters, राइट। तो बेसिकली कॉलम वाइज और रो वाइज मेरी जो रेटिंग्स है ना वो ABCD चारों यूज होने चाहिए, ठीक है। एंड द सेम इज ऑल्सो ट्रू फॉर निखिल, एक्सेप्ट दैट ही यूजेस 3-4 डिफरेंट लेटर्स, दैट इज EFGH, ठीक है। तो निखिल जो है यहाँ पे वो EFGH यूज़ करता है। चलो मैं यहाँ पे ना लिख लेता हूँ, ठीक है। सो ऐसे मीरा यूजेस द रेटिंग ABCD और जो निखिल है वो EFGH रेटिंग यूज़ करता है फॉर द 4 डिफरेंट पैरामीटर्स। अब कौन सी रेटिंग कहाँ मिलेगी वो तो हमें फिगर आउट करना पड़ेगा, राइट। बट दिस इज़ व्हाट आई हैव एज ऑफ नाउ कि ये रेटिंग्स है जो ये लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये भी पता है कि हर पैरामीटर में, राइट, जैसे लेट्स से रिदम है तो 4 डिफरेंट रेटिंग्स मिलनी चाहिए हर फाइनलिस्ट को, और हर फाइनलिस्ट को 4 डिफरेंट रेटिंग्स मिलेंगी। तो मतलब रो वाइज एंड कॉलम वाइज द रेटिंग्स कैन नॉट रिपीट, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे A रखा तो यहाँ पे मैं C डाल सकता हूँ, D डाल सकता हूँ, B डाल सकता हूँ, ऐसे मैं रिपीट नहीं कर सकता। दे हैव टू बी ऑल डिस्टिंक्ट, है ना। अगर यहाँ पे A तो यहाँ पे हो सकता है B आ जाए। क्यों B आ जाए? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी D है तो इस कॉलम में D नहीं आ सकता। जैसे मैंने यहाँ पे D रख दिया विच इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। बस एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ कि जैसे मान लो यहाँ पे D आ गया है तो यहाँ पे D अब उस रो में नहीं आ सकता। चित्रा को अगर किसी एक पैरामीटर में D रेटिंग मिल गई तो किसी और पैरामीटर में D नहीं मिल सकती, ठीक है। एंड सेम इज ट्रू फॉर निखिल एज वेल, ऑलराइट। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। फॉर रेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द 4 फाइनलिस्ट इन ईच ऑफ द 4 पैरामीटर्स, ओमकार यूजेज द लेटर हुज पोजिशन इन द अल्फाबेटिकल सीरीज is equidistant from the position of the letters used by Meera and Nikhil to that finalist in that parameter। अच्छा, तो देखो समझो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ओमकार वो अल्फाबेट यूज करता है रेट करने के लिए जो कि इक्विडिस्टेंट हो उसी पैरामीटर में जो मीरा और निखिल ने रेटिंग दी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो लेट्स से मीरा ने रेटिंग दे दी A किसी पैरामीटर में, ठीक है, और लेट्स से निखिल ने रेटिंग दे दी E, राइट। तो अब A और E से इक्विडिस्टेंट कोई पैरामीटर है क्या, कोई अल्फाबेट है क्या, B C D E? हाँ, तो C है ना, देखो C इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड E, है ना। यहाँ पे भी एक का गैप है, यहाँ पे भी एक का गैप है। तो फिर अगर किसी पैरामीटर में मान लो आरफ को R पैरामीटर में मीरा ने A रेटिंग दी, ठीक है, और निखिल ने E रेटिंग दे दी, तो उस पैरामीटर में फिर ओमकार उसको C रेटिंग दे देगा विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बोथ द रेटिंग्स गिवन बाय मीरा एंड निखिल, ठीक है। तो ये मेरा रेटिंग पैटर्न है फॉर ओमकार। Further, it is observed that there is always a unique such letter in each case, that is there are never 2 middle most letters, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2 middle most letters आ रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मान लो A दी मीरा ने, ठीक है, और निखिल ने F दे दी, तो इस केस में ना 2 लेटर्स बीच में आ रहे हैं ना, तो ऐसा केस हम नहीं ले सकते। C और D बीच में आ गए, बट ये केस पॉसिबल नहीं। देयर इज ऑलवेज 1 मिडिल मोस्ट लेटर, 2 मिडिल मोस्ट लेटर वाला केस एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मीरा गिव्स A in some parameter to some finalist and then Nikhil would give either E or G in the same parameter to the same finalist so that there is always a single middle and most letter between them, ठीक है। जैसे हमने देखा अगर A दिया और निखिल ने E दिया तो C आ गया एग्जैक्टली मिडिल में, राइट। मान लो अगर A देते, F के केस में पॉसिबल नहीं क्योंकि C और D आ रहे हैं, ठीक है, या फिर A के साथ G का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, उससे क्या होगा, D इज द मिडिल मोस्ट लेटर। तो ओमकार कैन गिव अ D। अगर मीरा ने किसी पैरामीटर में A दिया और निखिल ने G दिया तो उस केस में आई कैन से ओमकार कैन गिव अ रेटिंग ऑफ D इन दैट पर्टिकुलर पैरामीटर, ठीक है। तो ये मुझे समझ में आ गया कि ये कैसे वर्किंग चल रहा है। मतलब मुझे ना एक मिडिल मोस्ट लेटर ढूंढना है और वो कॉम्बिनेशंस मेरे बनेंगे, ठीक है ना। अब ये मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं। तो पहले ना बिफोर आई स्टार्ट मेकिंग फिलिंग अप दिस टेबल, पहले कॉम्बिनेशन ही बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ अगर मैं A से स्टार्ट करता हूँ, राइट। अगर मीरा ने किसी भी पैरामीटर में A रेटिंग दी, ठीक है, तो आई कैन से ABCDE, एक मेरा कॉम्बिनेशन ये बन गया, ठीक है, जिसमें जो मिडिल मोस्ट लेटर है वो मेरा C है, ठीक है। तो उसको मैं सर्कल भी कर देता हूँ, राइट। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि दूसरा कॉम्बिनेशन मेरा क्या बन सकता है, आई कैन से ABCDEF तो नहीं बन सकता, G बन सकता है, ठीक है। F पे एंड किया तो 2 मिडिल मोस्ट लेटर आएंगे, बट एज पर द क्वेश्चन देयर इज ओनली 1 मिडिल मोस्ट लेटर, सो यहाँ पे G आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम H ले लो, ठीक है। मान लो अगर मीरा ने A दिया, ठीक है, और निखिल ने H दे दिया, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ ABCDEFGH, है ना। अब देखो यहाँ पे मिडिल मोस्ट लेटर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने, इवन है। तो इवन है तो मतलब 2 बीच में आने वाले हैं, है ना। D and E आर द 2 अल्फाबेट्स इन मिडिल।
बट एज पर द डेटा देयर कैन नॉट बी टू मिडिल मोस्ट लेटर्स, राइट। तो ये वाला केस, ऐसे केस पॉसिबल नहीं है, मतलब मुझे सारे वो केसेस लिखने हैं जिसमें टोटल कॉम्बिनेशंस ऑड बन रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा केस हो गया ए वाला, है ना। अब मान लो मैं स्टार्ट करता हूँ कि मान लो निखिल मीरा ने बी रेटिंग दी है किसी को, ठीक है। बी वाले केसेस बनाते तो ए वाले 2 केसेस बन गए, तो आई कैन से बी सी डी ई, है ना। अब ये 4 हुआ एफ, तो बी एंड एफ इज अ पॉसिबल केस, ठीक है। मतलब ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है फॉर द रेटिंग गिवन बाय मीरा एंड निखिल इन अ पर्टिकुलर पैरामीटर, कि बी और एफ ए पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जिससे ओमकार उसी पैरामीटर में रेटिंग डी दे पाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली मैं बोलूँगा कि यार अगर मैं बी और एफ ले सकता हूँ तो बी सी डी ई एफ, जी तो नहीं ले सकता मैं, ठीक है, क्योंकि 6 हो गए। तो एच ले लिया, तो उस केस में क्या हो गया, आई कैन से एग्जैक्टली ई इज इन द मिडल, ठीक है। तो ई मेरा बीच में आ गया, तो दैट इज वन ऑफ द पॉसिबल केसेस। अगर मेरा किसी पैरामीटर में बी रेटिंग दे रहा है, ठीक है, तो निखिल कैन गिव अ रेटिंग ऑफ एच इन दैट पर्टिकुलर पैरामीटर, उस केस में ओमकार ई रेटिंग दे देगा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब सी से केस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सी से स्टार्ट किया, तो सी डी ई मान लो मीरा ने सी रेटिंग दे दिया, ठीक है, और निखिल ने ई दे दिया, है ना। तो ये मेरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है, 5th केस बन गया मेरा, जहाँ पे मेरा डी इज द एग्जैक्टली मिडिल मोस्ट लेटर, तो ये ओमकार रेटिंग दे सकता है, राइट। और क्या बन सकता है, ठीक है, तो सी डी ई एफ तो नहीं बन सकता, जी बना सकता हूँ मैं, ठीक है। जी के साथ यहाँ पे एग्जैक्टली मेरा ई बीच में आ जाएगा, isn't it? So that is also a possible combination for me. तो ये भी एक मेरा 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। तो सी से 2 कॉम्बिनेशन बन गए। अब डी से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं डी से स्टार्ट करूं तो डी, ठीक है, मान लो डी दिया मीरा ने, ई दिया इसने, डी ई एफ, ठीक है। मान लो एफ दे दिया, ठीक है, मीरा ने मान लो डी दिया और निखिल ने एफ दे दिया, तो बीच में एग्जैक्टली एक लेटर आ गया ई, विच कैन बी गिवन बाय डेफिनेटली ओमकार, राइट। सो दिस इज माई 7th केस, है ना। तो काफ़ी केसेस बन रहे हैं, ठीक है। और डी के साथ एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है, आई थिंक डी ई एफ जी एच, है ना। डी और एच का कॉम्बिनेशन बन जाए जहाँ पे एफ कैन बी गिवन बाय ओमकार, डी कैन बी गिवन बाय मीरा एंड एच कैन बी गिवन बाय निखिल। सो दैट इज माई लास्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, ठीक है। सो दीज आर माई ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। अब इसके बेसिस में मुझे इस चीज़ों को यहाँ पे वर्कआउट करना है, ठीक है ना। अब देखो, जैसे मैं टेबल को फिल करना स्टार्ट करूँ, तो जैसे मैं मान लो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। लेट्स से स्टार्ट फ्रॉम मीरा ने ए रेटिंग दी, ठीक है, आर रिदम पैरामीटर में भविन को, ठीक है। अब ए के साथ मेरा कॉम्बिनेशन या तो ई का बन सकता है ना, पहला केस, या फिर दूसरा केस। अगर आप फर्स्ट और सेकंड केस पे फोकस करोगे, सो आई नो दैट विद ए आई कैन हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ ई और अ कॉम्बिनेशन ऑफ जी, ठीक है। अब मैं ए के साथ या तो यहाँ पे ई रखूँ या फिर यहाँ पे जी रखूँ, बट जी तो मेरा ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, तो रेटिंग रिपीट तो हो नहीं सकती। वी ऑलरेडी नो दैट कि यहाँ पे दिया होता है ना कि पैरामीटर में हमेशा डिस्टिंक्ट रेटिंग्स है। ही गेव अ डिफरेंट लेटर टू रेट द परफॉर्मेंस ऑफ ईच फाइनलिस्ट एंड फॉर ईच फाइनलिस्ट ही गेव अ डिफरेंट लेटर टू रेट द परफॉर्मेंस इन ईच पैरामीटर। तो रो वाइज और कॉलम वाइज तो सारे पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए गिवन बाय ईच ऑफ द जज, राइट। तो जी रिपीट नहीं हो सकता। दैट मीन्स द ओनली पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज यहाँ पे ए और ई का कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है ना। सो अगर ये ए और ई का कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पे, तो अगर ए यहाँ पे मिला और इसको ई मिला, तो यहाँ पे सेंटर में क्या आना चाहिए, सी। तो यहाँ पे मैं ओमकार की रेटिंग क्या कर दूंगा, सी कर दूंगा एज पर केस 1 आर पैरामीटर में, ठीक है। अब सिमिलरली देखो, जैसे यहाँ पे डी है, ठीक है, तो अगर डी है तो डी के साथ मुझे पता है कि या तो डी से के साथ एफ का कॉम्बिनेशन बन सकता है केस नंबर 7, या फिर डी के साथ एच का कॉम्बिनेशन बन सकता है केस नंबर 8, राइट। तो रिमेंबर, ये जो पहली रेटिंग है ना, हर केस की पहली रेटिंग इज द रेटिंग गिवन बाय मीरा, ठीक है, और लास्ट रेटिंग जो है दैट इज द रेटिंग गिवन बाय निखिल, ठीक है ना। और जो बीच वाली रेटिंग है वो सारी रेटिंग कौन दे रहा है, ओमकार दे रहा है उस पर्टिकुलर केस की। हर केस के लिए यही है, ठीक है ना। तो अब इसके हिसाब से तो ये इजी हो जाएगा मेरे लिए, है ना, फिल करना। बट अगर आप ये सोच नहीं पाए ना, इफ़ यू कुडंट थिंक ऑफ दिस केसेस, अगर आप हर बार एक एक केस आप कोशिश करो सोचने का, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। आप सेट सॉल्व नहीं कर पाओगे। यू हैव टू लिस्ट डाउन दिस केसेस, कर लोगे, बट यू विल टेक लॉट ऑफ टाइम, राइट। सो इट्स बेटर टू लिस्ट डाउन ऑल दी पॉसिबिलिटीज। थोड़ा ना 2 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, बट सेट बनाने में ईजी हो जाता है। जैसे मैंने देखा, डी के साथ या तो एच आ सकता है या फिर डी के साथ एफ आ सकता है, निखिल और मीरा वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो डी के साथ अगर यहाँ पे डी है तो या तो मैं एफ रखूँ या एच रखूँ, बट एच तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। चित्रा, निखिल ने चित्रा को एच रेटिंग तो इसमें में दे ही रखी है ना, तो केस 8 पॉसिबल नहीं है, मतलब 7 केस पॉसिबल, तो यहाँ पे एफ रख दो, ठीक है। और जैसे यहाँ पे एफ रखा तो डी और एफ के कॉम्बिनेशन में बीच में कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे आर में इसको ई की रेटिंग मिल जाएगी,
ठीक है। अब देखो जैसे ओमकार ने ई में, ठीक है, भविन को डी रेटिंग दे रखी है, तो डी बीच में आ सकता है किस किस केस में, ठीक है, डी बीच में किस केस में आ सकता है, या तो ए और जी वाला केस हो जाए, या फिर बी और एफ वाला केस हो जाए, या फिर सी और ई वाला केस हो जाए, ठीक है। सो ये सब केसेस है पॉसिबल जिसमें डी रेटिंग आ सकती है, राइट। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे सी और ई रख सकता हूँ? सी और ई नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। क्या मैं ए और जी रख सकता हूँ? ए एंड जी है, यहाँ पे ए डाल दूँ, यहाँ पे जी डाल दूँ, जिसकी वजह से डी बीच में आ गया? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ए ऑलरेडी मीरा ने आर में यहाँ पे भवन को दे रखा है, ठीक है। तो ए और जी वाला केस भी रूल आउट हो गया। तो कैन से द ओनली पॉसिबल कॉम्बिनेशन दैट विल वर्क आउट इज केस नंबर 3 कि मीरा यहाँ पे भवन को बी रेटिंग दे दे, ठीक है, और यहाँ पे निखिल इसको एफ रेटिंग दे दे, और जैसे ही इसने एफ दिया तो बी और एफ के बीच में एग्जैक्टली इक्विडिस्टेंट लेटर इज डी, जो यहाँ पे ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क दिस आउट, ठीक है। अब फिल करते हैं इसको, तो ई एफ जी आ गया मेरा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एच आ जाएगा, ठीक है। अब जी के साथ अगर निखिल ने जी दिया तो उस केस में मीरा यहाँ पे कौन सा रेटिंग दे सकता है, राइट। जैसे यहाँ पे जी है तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन सी रेटिंग दे सकता है मीरा यहाँ पे, तो देखते हैं। तो जी के साथ क्या कॉम्बिनेशन? जी के साथ या तो ए का कॉम्बिनेशन बन जाए, बट ए तो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो नहीं ले सकता, ठीक है। तो जी के साथ मैं सी का कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, राइट। जी एंड सी इज ऑल्सो पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जहाँ पे जी रेटिंग निखिल दे रहा है और सी रेटिंग मीरा दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली सी आएगा, और जैसे यहाँ पे सी आया तो ये ऑटोमेटिकली डी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिल कर लो सी और जी, सी एंड जी के बीच में कौन सा आ रहा है? ई आ रहा है, तो यहाँ पे ई आ जाएगा, राइट। अच्छा, डी और एच के बीच में कौन सा आ रहा है? सो डी एंड एच के बीच में आ रहा है मेरा एफ आ रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एफ आ जाएगा, राइट। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड रो की, क्योंकि देखो मेरे पास ना सबसे ज़्यादा डेटा निखिल वाले कॉलम, निखिल वाला जो सेट है ना बीच में पूरा, उसमें सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स अभी, तो मैं उस पर ही अटैक करूँगा, है ना। अब जैसे एफ और एच हो गया, तो चित्रा के लिए निखिल की जो रेटिंग बची है वो ई और जी बची है। अब क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपीरियंस वाले कॉलम में एक्सपीरियंस था ना पहला पैरामीटर, ई से क्या था पैरामीटर इन द 4 पैरामीटर्स, व्हाट आर दिस? हाँ, एक्सप्रेशन। अच्छा, तो एक्सप्रेशन वाला जो आप कॉलम देखो उसमें ऑलरेडी आर एफ को ई रेटिंग दे रखी है, तो ई चित्रा को तो मिल नहीं सकती, मतलब यहाँ पे उसको जी देना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे जी दिया तो यहाँ पे डेफिनेटली ई आ जाएगा मेरा, राइट। अच्छा, अब जब यहाँ पे जी दे दिया, यहाँ पे ई आ गया, ठीक है। अब जी के साथ मुझे पता है कि मीरा कौन सा रेटिंग दे सकता है। जी के साथ या तो सी का कॉम्बिनेशन बन सकता है या फिर ए का कॉम्बिनेशन बन सकता है ना। तो यहाँ पे तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, जी के साथ ए एंड सी, ठीक है। ये छोड़ते हैं, एफ एंड डी वाला तो केस बन ही चुका है, ठीक है। अच्छा, एच के साथ क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? तो एच के साथ या तो बी बन सकता है केस नंबर 4, या फिर डी बन सकता है, ठीक है। अब देखो एच के साथ या तो डी कॉम्बिनेशन बनेगा या एच के साथ बी का कॉम्बिनेशन बन सकता है मीरा का रेटिंग का, ठीक है। बट डी तो ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे आर वाले पैरामीटर में, राइट। तो आई कैन से फिर यहाँ पे एच के साथ मुझे बी का ही कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, दैट इज केस नंबर 4। तो अगर उसने एस पी में निखिल ने एच दिया है तो फिर मीरा को एच पी में बी देना पड़ेगा, और जैसे ही उसने बी दिया तो केस नंबर 4 के हिसाब से यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा? एग्जैक्टली ई आ जाएगा, राइट, ठीक है। अब मेरा बचा ए और सी, है ना। ए और सी मेरे बच गए चित्रा की रेटिंग फॉर मीरा, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला क्या है, यहाँ पे ई है ना। टीएस में ई दिया हुआ है, राइट, टेक्निकल स्किल में ई दिया हुआ है निखिल ने। तो ई के साथ क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? या तो ए आ जाए ई के साथ, राइट, या फिर सी आ जाए, ठीक है। ए और सी दोनों पॉसिबिलिटीज है अभी, तो अभी मैं इसको होल्ड पे डालता हूँ, ठीक है, बिकॉज आई नो ए एंड सी एनीथिंग इज पॉसिबल है, ठीक है। बट वन थिंग फॉर श्योर कि यहाँ पे तो डेफिनेटली एच आएगा, है ना, यहाँ पे तो डेफिनेटली मेरा एच आ जाएगा, राइट। अच्छा, ई और एफ हो गया यहाँ पे आर वाले कॉलम में, तो जी और एच बच गया, राइट। ये ध्यान से देखो यहाँ पे रिदम वाले जो कॉलम है निखिल का, उसमें जी और एच बच गया। एच लास्ट में आ सकता है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एच है, मतलब यहाँ पे जी आना पड़ेगा, और दैट मीन्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली एच आएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही एस पी वाले कॉलम में ई और एफ बच गया, इजंट इट। तो अगर ई और एफ बच गया है तो आई कैन से कि ई मेरा फर्स्ट रो में तो नहीं आ सकता आर एफ के कॉलम, आर एफ के रो में, क्योंकि ई ऑलरेडी एक्सप्रेशन में है, तो यहाँ पे एफ आना पड़ेगा, फिर यहाँ पे ई आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे एफ आएगा और यहाँ पे जी आ जाएगा। सो ये तो मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगेन सोचने वाली बात है कि कैसे अटैक करें। तो देखो मुझे निखिल का तो पूरा डेटा मिल गया, राइट, बट अभी भी मुझे मीरा का ना डेटा नहीं मिला है, लेकिन मेरे पास 2 कॉलम का डेटा जाता है, ठीक है। तो मैं इन्हीं 2 कॉलम से रिलेट करूंगा, राइट। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि जैसे देखो निखिल का अगर आर में जी दिया, ठीक है, निखिल ने अगर आर में जी दिया यहाँ पे, तो मैं बोल सकता हूँ कि जी के साथ या तो सी का कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा, ठीक है, केस नंबर 6 मेरा, है ना, या फिर जी के साथ ए का कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा, राइट। तो जी के साथ या तो सी बैठ सकता है यहाँ पे या फिर ए बैठ सकता है, बट ए तो ऑलरेडी प्रेजेंट है भविन के लिए, दैट मीन्स यहाँ पे डेफिनेटली सी आएगा,
है ना, और द मोमेंट यू राइट सी है ये ऑटोमेटिकली मेरा बी हो जाएगा, ठीक है ना. सो दिस इज ऑटोमेटिकली बी हियर, राइट. अच्छा, अब देखो बी सी ए एंड डी इज लेफ्ट आउट, राइट. चलो देख लेते हैं, यहाँ पे ई है, ठीक है. तो ई के साथ क्या कॉम्बिनेशन बैठ सकता है, राइट. सो आई अटैक्ड ऑन दी कॉलम जहाँ पे ऑलरेडी 2 अल्फाबेट्स थे रादर देन कॉलम 1 and 4, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही अल्फाबेट था, राइट. तो मेरे चांसेस ऑफ एलिमिनेशन कॉलम नंबर 2 और 3 में ज़्यादा थे, राइट. दैट इज आई एम अटैकिंग दीज 2 पर्टिकुलर कॉलम्स, राइट. अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ई है, तो ई के साथ क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, या तो ए का बनेगा, है ना, ए एन ई केस नंबर 1, या फिर देखो सी एन ई केस नंबर 5, ठीक है. ए एंड ई या सी एन ई, अब सी तो ऑलरेडी प्रेजेंट है एस पी वाले कॉलम में यहाँ पे, राइट. सो दिस हैज टू बी ए, राइट. और ए एंड ई अगर यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, फिर डेफिनेटली इट हैज टू बी डी. डी बच गया ना, तो डी विल कम हियर, ठीक है. अब यहाँ पे ना थोड़ा सा फिल कर लेते हैं. सो बी एन एच दैट इज आर, तो बी एन एच के बीच में एग्जैक्टली कौन सा आता है, ई आता है, तो आर पे यहाँ पे ई डाल दो, ठीक है. डी एंड एफ, अगर डी एन एफ है तो बीच में ई आएगा, तो यहाँ पे भी ओमकार ने ई रेटिंग दी होगी, ठीक है. सी एंड जी, सी एंड जी के बीच में आता है एग्जैक्टली ई, तो दैट मीन्स यहाँ पे भी ओमकार ने ई रेटिंग दी है. और ए और ई के बीच में क्या आता है, आई कैन से सी आता है, दैट मीन्स यहाँ पे रेटिंग सी मेरी है, ठीक है ना. अब देखो यहाँ पे कितना ईजी हो जाएगा मेरी बनाना, राइट. अब ऐसे चित्रा का रो अगर देखोगे तो मीरा ने डी और बी की रेटिंग दे चुका है, ठीक है, ऑलरेडी. ए और सी बचा हुआ है, राइट. ए एंड सी इज लेफ्ट. अब जी के साथ अगर यहाँ पे जी है, देखो यहाँ पे जी है, राइट. तो जी के साथ मैं बोल सकता हूँ ए भी आ सकता है और सी भी आ सकता है, ठीक है. दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं अभी भी, राइट. तो ये तो मैं नहीं सोच सकता इसके बारे में, राइट. अच्छा, ये तो हमें पता है ए और सी दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है. लास्ट वाला रो देखते हैं, एच के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है. अगर निखिल ने एच दिया है तो मीरा कौन सा रेटिंग दे सकता है, तो एच के साथ या तो डी दे सकता है, ठीक है, या फिर एच के साथ बी दे सकता है, एज पर केस नंबर 4, राइट. एच एंड बी और एच एंड डी. अच्छा, एच एन बी एंड एच एन डी बोथ आर पॉसिबल, लेकिन देखो बी ना ऑलरेडी भविन को मिल चुका है एक्सप्रेशन के केस में, तो मतलब एच और बी का कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो दैट मीन्स द ओनली पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज एच एंड डी. और जैसे यहाँ पे डी रखोगे तो एच और डी के बीच में कौन सा आता है, आई कैन से एफ आता है, तो यहाँ पे रेटिंग एफ हो जाएगी ओमकार ने जो दी होगी, ठीक है ना, बिकॉज डी एन एच के बीच में इक्विडिस्टेंट अल्फाबेट एफ है मेरा, राइट. और फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली बी फिल कर दो, ठीक है. और बी और एफ के बीच में मेरा अल्फाबेट कौन सा है, एग्जैक्टली डी है, एज पर केस नंबर 3, तो यहाँ पे डी रेटिंग आ जाएगी, ठीक है ना. अब मेरे पास क्या बच गया, सो आई एम लेफ्ट विद ए एंड सी फॉर दिस कॉलम एंड आई एम लेफ्ट विद ए एंड सी फॉर दिस कॉलम एज वेल. अच्छा, देखते हैं, चलो ई के साथ क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. ई के साथ या तो ए आ सकता है ना, या फिर सी आ सकता है, ठीक है. ए के साथ ई एंड सी तो बोथ आर पॉसिबल, राइट. अच्छा, देखते हैं, चलो डी एंड बी, ए एंड सी इज लेफ्ट, राइट, फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलम ऑल्सो. और यहाँ पे मेरे पास डी एंड बी हो गया, ए एंड सी इज लेफ्ट, ए एंड सी इज लेफ्ट. अच्छा, यहाँ पे जी है, देखते हैं, चलो एक एक करके अटैक करते हैं. यहाँ से तो कुछ नहीं मिला, ठीक है. जी से देखते हैं, जी के साथ क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. या तो सी का कॉम्बिनेशन बन सकता है जी के साथ, है ना, या फिर ए का बन सकता है, राइट. सो अगेन आई हैव बोथ दी पॉसिबिलिटीज है. अच्छा, ठीक है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे एफ है, ठीक है. एफ के साथ देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, राइट. सो एफ के साथ मेरा या तो बी का कॉम्बिनेशन बन सकता है, इजंट इट, या फिर डी का कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है. तो ये तो हो गया है. ऑल राइट, लेट मी जस्ट चेक व्हाट इज रिमेनिंग, व्हाट इज मिसिंग हियर. सो बी एंड डी. अच्छा, होल्ड ऑन गाइस, देखो मैंने ना देखो यही होता है ना, यू हैव टू कीप एन आई फॉर दी डिटेल्स. अब यहाँ पे ऑलरेडी मुझे ई दिया हुआ है ना, ओमकार की रेटिंग एक्सप्रेशन वाले पैरामीटर में गिवन टू चित्रा, ये ई दिया हुआ है, ठीक है. और यहाँ पे जी है, तो अगर ई मेरा इक्विडिस्टेंट लेटर और यहाँ पे जी है, तो अगर मैं ए और जी वाला कॉम्बिनेशन लूँगा, है ना, सेकेंड केस, तो वहाँ पे बीच में डी आएगा, बट मुझे तो ई चाहिए, राइट. तो मुझे तो ई चाहिए, तो मतलब मुझे सी और जी वाला कॉम्बिनेशन चाहिए, तभी ई मिलेगा, राइट. सो दिस इज ई, दैट इम्प्लाइज कि यहाँ पे मेरा जी है, तो यहाँ पे मेरा डेफिनेटली सी आएगा, ठीक है. और जैसे यहाँ पे सी प्लेस किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ए आ जाएगा, राइट. और ए और ई के बीच में कौन सा आता है, सी आता है, तो यहाँ पे सी प्लेस कर दो, ठीक है. बिटवीन ए इन टी एस एंड ई इन टी एस द इक्विडिस्टेंट लेटर इज सी, सो यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है. अब ए बी डी हो गया टी एस वाले टेक्निकल स्किल वाले कॉलम का, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सी आ जाएगा, ठीक है. एंड बिटवीन सी एंड जी, ठीक है, बिटवीन सी एंड जी एज पर केस नंबर 6 वी हैव ई, तो यहाँ पे ई प्लेस कर दो, राइट. दैट इज इन टी एस, है ना. यहाँ पे देखो सी है, मीरा ने सी दिया, टी एस में निखिल ने जी दिया, तो यहाँ पे इक्विडिस्टेंट लेटर ई आ गया, राइट. और फिर जो बच गया ए बच गया यहाँ पे, सो दिस इज ए हियर एंड दिस इज ई हियर. सो बिटवीन ए एंड ई एज पर केस नंबर 1 द इक्विडिस्टेंट लेटर इज सी, तो यहाँ पे सी आ जाएगा. एंड दैट इज योर कंप्लीट टेबल.
सो अंडरस्टैंड गाइस, है ना, इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, ये सेट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है अगर आप ये केसेस नहीं लिखते, ठीक है। दीज केसेस दैट आई हैव रिटन 1 to 8, इफ यू वुड हैव नॉट लिस्टेड दीज केसेस देन दिस सेट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सॉल्व, राइट। बट अगर आप ये केसेस लिख लोगे तो ये सेट काफी ईजी बन जाता है हमारे लिए, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस हियर। The very first question says, for which finalist did Meera use letter C to rate the performance in stage presence parameter, ठीक है। तो मीरा ने स्टेज प्रेजेंस में लेटर सी किसको दिया, डेफिनेटली यहाँ पे आप देख लो भवन को दिया हुआ है, ठीक है, दिस पर्टिकुलर वन, राइट। सो भवन को दिया है, सो आंसर इज डेफिनेटली भवन, ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव टू द सेकंड वन। For which finalist did Omkar use letter E to rate the performance in 3 of the 4 parameters, ठीक है। For which finalist Omkar has given a rating of E in 3 of the 4 parameters। तो अगर आप देखोगे तो चित्रा के लिए ना ओमकार ने यहाँ पे देखो 4 में से 3 पैरामीटर्स में E की रेटिंग दे रखी है, ठीक है, फॉर द फाइनलिस्ट दैट इज चित्रा, राइट। सो आंसर इज डेफिनेटली चित्रा है, ठीक है। अच्छा, 2 ऑप्शंस हैं, बोथ, और भी कोई है क्या, और भी कोई कैंडिडेट है, यस यस यस, आरव भी तो है ना, देखो आरव को भी 3 बार ई रेटिंग मिली हुई है, राइट। सो दैट मीन्स बोथ आरव एंड चित्रा, है ना। भविन को 2 बार ई में ए बार ई मिला है और यहाँ पे भी ए बार ई है, सो बोथ आरव एंड चित्रा, दैट मीन्स दैट शुड बी ऑप्शन नंबर सी हियर, ऑलराइट। Now, question number 3. For which finalist did Omkar use a different letter to rate the performance in each of the 4 parameters, ठीक है। अब देखोगे अगर DCEF है फॉर भवन और फॉर दिशा भी FECD है, तो दिशा और भवन के लिए कोई भी उसने पैरामीटर रिपीट नहीं किया ओमकार ने, राइट। सो आई कैन से दिशा एंड भवन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इन विच पैरामीटर डिड निखिल यूज लेटर F फॉर दिशा, ठीक है। निखिल ने लेटर F दिशा के लिए कौन से पैरामीटर में यूज किया, तो देखो यहाँ पे टेक्निकल स्किल में यूज किया हुआ है, राइट। सो आंसर इज टेक्निकल स्किल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, राइट। अच्छा, यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा ये हटा देता हूँ जो मैंने ये टिक कर रखा था क्वेश्चन से, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रेटिंग्स गिवन टू दिशा इन स्टेज प्रेजेंस पैरामीटर बाय जजेस मीरा, निखिल एंड ओमकार रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो दिशा को स्टेज प्रेजेंस में क्या क्या रेटिंग्स मिली है बाय मीरा, निखिल एंड ओमकार। सो मीरा ने ए दिया, निखिल ने ई दिया है और ओमकार ने सी दिया है, ठीक है। सो AEC बाय मीरा, निखिल एंड ओमकार, किस ऑर्डर में चाहिए मुझे, मीरा, निखिल एंड ओमकार, सो दैट हैज टू बी AEC विच इज ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। लास्ट वन, which of the following statement is false, let's see। the rating given by निखिल to भवन in rhythm is parameter is E, ठीक है। निखिल ने भवन को रिदम में E दिया, that is a true statement, that is not a false statement, ठीक है। so ऑप्शन नंबर 1 तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। 2 देखते हैं, the rating given by मीरा to आरव in technical skill is C, okay। rating given by मीरा to आरव in technical skill is C, yes, ठीक है। technical skill is C, definitely C है, ठीक है। तो ये भी मेरा फॉल्स स्टेटमेंट नहीं हो सकता, राइट। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। द रेटिंग गिवन बाय निखिल टू चित्रा इन टेक्निकल स्किल इज F, ओके। निखिल टू चित्रा इन टेक्निकल स्किल इज F, नो, दैट इज अ E रेटिंग हियर, है ना। यहाँ पे देखो टेक्निकल स्किल में निखिल ने चित्रा को E रेटिंग दे रखी है, राइट। सो दैट इज अ डेफिनेटली अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। सो माई आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर C। इफ यू वॉन्ट आई कैन चेक ऑप्शन नंबर D एज वेल। रेटिंग गिवन बाय ओमकार टू दिशा इन स्टेज प्रेजेंस पैरामीटर इज C, देख लेते हैं। देखो ओमकार ने दिशा को स्टेज प्रेजेंस में C रेटिंग यहाँ पे देखो दे रखी है, राइट। सो दैट इज अ डेफिनेटली अ ट्रू स्टेटमेंट, सो दिस ऑल्सो कैन नॉट बी माई आंसर, राइट। सो दीज आर माई रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज B, C, D, A, B एंड C। आई होप एवरीबडी कुड फॉलो, अच्छा सेट था, ठीक है, गुड लर्निंग। तो बेसिकली चीज़ क्या है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे गाइस समझने के लिए, कि आपको केसेस लिखने से पीछे नहीं हटना है, ठीक है। आई हैव ऑल्सो टोल्ड दिस इन द प्रीवियस वीडियोज एज वेल कि केसेस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप केसेस नहीं लिखोगे ना, आप वो सेट को विजुलाइज कर ही नहीं पाओगे, आप फंसोगे। ऐसा होगा आपके साथ कि आप स्टार्ट से ही कर रहे होगे, है ना, आप थोड़ा बहुत टेबल फिल कर पाए होगे, राइट। बहुत लोग साथ यहाँ पे ऐसा हुआ होगा जिन्होंने आधी टेबल फिल करी होगी, फिर नहीं मूव फॉरवर्ड कर पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि सारे केसेस आंख के सामने नहीं दिख रहे हैं। जब तक आपको ये सारे केसेस अपनी आंखों के सामने नहीं दिखेंगे, टिल द टाइम you don't have all these cases listed right in front of you. If I cannot see, okay, with A what combinations can I make, like here I can straight away see, okay, A and E is a possible combination या फिर A and G is a possible combination, right? तो अगर मेरी आपके सामने ये है केस
So I can straight away apply. But if every step I'm thinking, okay, if there is a what will come in between A, B, C, D, E, every step I'm writing, that doesn't make sense. That is a waste of time, right? And see, the set also always gives you the hint. अब देखो set ने यहाँ पे मुझे hint दी है. For example, between A and E, C is the middle most and A and G, D is the middle most. तो set आपको hint दे रहा है कि आप लिखो cases, right? So you have to catch these little nuances given in the set. The set always gives you pretty much good amount of hint to, you know, hold your hand and take you to the end of the solution. It's just that you have to keep your eyes wide open and your mind wide open. ठीक है, ब्रेन एकदम खुला होना चाहिए, दिमाग एकदम चलना चाहिए. ऐसा नहीं कि स्टक है, लॉस्ट है सेट में. दैट इज समथिंग विच शुडेंट हैपन, especially when you're solving something timer based. ठीक है, अभी in the beginning I do not suggest timer based practice, but once you have done 200-250 sets, then you should start doing timer based practice. अपने आप को टाइम करो, ट्राई करो कि 15 मिनट्स 12 मिनट्स में एक 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का सेट आराम से बन जाना चाहिए. ऑन एन एवरेज 3 minutes per question is what you should target, right? So this was a good set. Please do let me know in the comment section how many of you got how many correct. All right. So with this, I'll come to the end of this particular video here, and I'll come again with yet another set for you guys. So we'll keep continuing this playlist. Keep following and keep supporting us. Thank you so much. Enjoy your day. Have fun.